Hello, dear students. Welcome to today's show. So, children, we are carrying on with this fourth chapter. We have completed the fourth chapter in political science, where we have discussed about the major developmental criteria for boys and girls. बॉयज़ के और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस होता है. सिंस द टाइम द गर्ल्स आर बॉर्न और सिंस द टाइम द बॉयज़ आर बॉर्न, उनको अलग तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है. द पेरेंट्स, द पीपल इन द फैमिली, दे ऑल मेक इट वेरी श्योर कि गर्ल्स को गर्ल्स की तरह बड़ा किया जाए, बॉयज़ को बॉयज़ की तरह किया जाए. अलग अलग क्राइटेरियाज थे. सो लॉट ऑफ थिंग्स. नाउ as we have completed fourth chapter in geography, fourth chapter in political science, so it's the turn of the fourth chapter and very interesting chapter from history. Lot of things you have studied in history. History में आपको कुछ पता हो नहीं हो, you know anything or not, but you might be definitely knowing about Akbar, you might be definitely knowing about Shah Jahan, Aurangzeb, Humayun, Babur. Yes, all these Mughal emperors, some of the greatest emperors who had done great work in India, we need to know about them. And for that purpose, we are starting with the Mughal Empire, the fourth chapter in history. Let's begin, children. There has been always a diversity of people and culture. ठीक है. मिडिल एजेस में इतने सारे लोग इंडिया में रहते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल स्टेइंग इन इंडिया. Diverse culture, diverse ways or means of living in the society. रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, सब चीज़ अलग है. तो in contrast what had happened to their predecessors, पहले के जो rulers थे, diversity is there. Okay? Cultures was an extremely difficult task. There are Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, with these kind of eminent personalities, eminent people. पहले के जो rulers थे, they faced lot of problems. की प्रॉब्लम हुई. इतने सारे लोगों को प्यार से एक ही जगह रखना was not an easy task. And in contrast to their predecessors means जो पहले के rulers थे, predecessors. Accessors जो आने वाले rulers हैं, predecessors means पहले के जो rulers हैं. Got it? So the Mughal dynasty that was there, the Mughals, the kind of empire that they have created was different from their predecessors. Now, the administrative changes that they have done, the major ideas that they have developed, it has made the Mughal emperors some of the greatest rulers in India. 16th century के बाद से, after 16th century what happened, they expanded their kingdom from Agra and Delhi. आगरा एंड दिल्ली से इन्होंने अपना किंगडम जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किया. Now, they expanded their kingdom. They took Indian territory to great heights. खाली इंडिया में ही नहीं, in the nearby kingdoms also, India was very well known, very well appreciated. The kind of victory that these rulers have won is very evident. We will be talking about them in detail. For now, we are just discussing the efforts that were taken by the Mughal rulers to take India to a greater height. Now what happened? क्या किया इन्होंने?
देखो एक चीज यहाँ दी हुई है, दे इम्पोज्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस, किस तरह से इंडिया को गवर्न करना है, दैट आउटलास्टेड देयर रूल. They ruled India for around 300 years. 300 matlab not one person, of course. Their generation, the Mughal dynasty, ruled in India for a very long time. Got it, children? Kind of administration that the Mughals have found, my dear students, extremely talented people, extremely well known for their architecture, the structures that they have built, the administration that they have established is unmatched. They have, देखो क्या है, it outlawed their rule. जितने दिन वो रहे, I mean that till the time the Mughal rule was there, they were very well known. But when they were not there, jab they have passed away, the rulers, the great rulers, they have left this world, then also they have left a political legacy. Legacy means such a tradition they have left, such a thing they have left, such an idea they have left, that in today's time also people follow that. Many rulers, many administrators take lessons the great administrative used by some of the great Mughal emperors. And today क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो क्या करते हैं कि झंडा फहराते हैं, the national flag is unfurled from the Red Fort on 15th of August. ये Red Fort कहाँ से आया? Okay, from the ramparts of the Red Fort in Delhi and the residence of the Mughal emperor. Once upon a time, एक समय की बात है, मुगल रूलर्स क्या होता था, इसी फोर्ट में रहते थे. नाउ अब लेट्स अंडरस्टैंड कि मुगल्स थे कौन. हु वर मुगल्स? सच ग्रेट पीपल. पता तो चलना चाहिए कि आखिर व्हाट इज देयर बैकग्राउंड. तो मुगल्स क्या थे? दे वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रेट लाइनेजेस. दो तरीके का ग्रुप, two great events were there, two, which means जैसे वंशज, वंश, दो ग्रेट डायनास्टी को मिला के मुगल्स की डायनास्टी बनी थी. टू ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, they are known for being the descendants, the ascendants of Mughals. मुगल्स के पूर्वज होने का इनको क्रेडिट मिला है. सबसे पहला क्या है कि फ्रॉम देयर मदर साइड, इनकी जो नाना जी थे, फ्रॉम माँ के तरफ से जो नाना जी थे ना, नाना जी वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान. गेंगीज खान अभी पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा. यस, गेंगीज खान के कुछ बेटे थे, उनके फिर किसी वाइफ के बेटे का, वो मतलब कुछ ना कुछ तरीके से उनकी मदर जो है वो गेंगीज खान से कनेक्टेड थी. ओके, एंड चाइना एंड सेंट्रल एशिया में इन्होंने रूल किया था. फ्रॉम देयर फादर साइड, पिताजी, दे वेयर सक्सेसर्स ऑफ तिमूर. तिमूर अगेन, तैमूर वॉज greatest. Taimur was one of the greatest rulers again who had been in the Delhi Sultanate के टाइम पे. He was also an invader. He was not from Delhi Sultanate. बाहर से आए थे लेकिन इंडिया पे आक्रमण किया था उन्होंने, एंड वो भी इंडिया को रूल करना चाहते थे. वन ऑफ द वेरी एम्बिशियस रूलर्स, काफ़ी एम्बिशियस थे, इंडिया में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते थे, कर नहीं पाए. लेकिन
they were able to establish a very powerful dynasty आगे चल के, जिनको हम मुगल्स के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, जो रूलर थे, तिमूर कौन थे? तिमूर वॉज द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड टर्की। और नाना की तरफ से इनके जो थे, दे वेर द रूलर्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया। मीन्स इनके खून में ही रॉयल आइडियाज थे। इन देयर ब्लड they had a royal kind of a feeling. Got it? And मुगल्स जो थे बहुत ज़्यादा अपने आप को, they did not like to be called, because you know Genghis Khan के बारे में भी have already discussed. Genghis Khan was a very cruel ruler. बहुत लोगों को मार काट किया उन्होंने, बहुत लोगों की जान ले ली। तो मुगल्स को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उनको कहे, अच्छा अच्छा, your Nana ji was from Mongol side, that's why you all are very cruel. They were not cruel people. They were the rulers who always considered India as their own country. They loved the Indian people. They loved the countrymen. तो they never liked कि उनको कोई Mongols कहे। तो अब Genghis Khan, you know, just now देखो, it is mentioned here, Genghis was associated with the massacre innumerable people. उन्होंने बहुत लोगों की जान ली थी। Genghis Khan ना has killed, मैं thousands नहीं कह सकती हूँ चिल्ड्रन, एक्चुअली Genghis Khan had killed lakhs of people, लाखों लोगों का कत्ल किया था। तो मुगल्स ने कि ओह, you have your ancestors, आपके एंसेस्टर्स तो मंगोल्स थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। दूसरी तरफ क्या था, दे लिंक्ड विद द उज़्बेक्स। उज़्बेक्स कौन थे? उज़्बेक्स वेयर द मंगोल कॉम्पिटिटर्स। जो मंगोल्स थे ना, गेंगीज खान को जिन लोगों ने बार बार हराया था, दे वेयर द उज़्बेक्स। जैसे मंगोलिया हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय गेंगीज खान, वैसे ही उज़्बेक्स हैव एस्टैब्लिश्ड उज़्बेकिस्तान। देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड उज़्बेकिस्तान। ओके, नाउ जस्ट सी, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जस्ट सी द फिगर 2। ये दिस इज फिगर 2, ठीक है। हियर यू कैन सी दिस फिगर, दिस इज टॉकिंग, क्या है ये फिगर? देखो, एक इसको यू नीड टू अंडरस्टैंड। मिनिएचर मीन्स छोटा, बहुत बारीक जिसमें काम किया गया है, छोटी छोटी डिटेल्स भी दी गई है। मिनिएचर, मिनी वर्ड से मिनिएचर आया है, विच वॉज डेटेड 1702 to 1712, बहुत पुराना है, ऑफ तिमूर एंड हिज डिसेंडेंट्स। उन तिमूर एज अ रूलर एंड उनके आने वाले रूलर्स जो हैं, एंड द मुगल एम्परर्स, उनकी ये पेंटिंग बनी है। तिमूर इज़ इन द सेंटर, ये जो बीच में बैठे हैं ये तिमूर है, दिस इज़ तिमूर। ओके, बैटरी मेरी कम हो गई है, बट नो, आई विल कैरी ऑन। तिमूर इज़ देयर। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर्स ग्रेट ग्रैंडफादर। लेफ्ट में क्या है? तिमूर के लेफ्ट में कौन है? हु इज़ देयर इन द बाबर्स? ग्रेट बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। And then Miran Shah is there, the first Mughal emperors was great grandfather। पड़ दादा जो हैं वो यहाँ पे हैं। उसके बाद अबू सईद हैं, बाबर के ग्रैंडफादर। लेफ्ट में कौन है? टू द लेफ्ट ऑफ तिमूर कौन है? सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा। ऑल द रूलर्स, जितने भी रूलर्स की फोटोग्राफ यहाँ बनाई गई है, दे ऑल वेयर द वंस जो कि तिमूर के टाइम से रूल कर रहे थे। दे वेयर ऑल रूलिंग सिंस द टाइम ऑफ तिमूर। गॉट इट? एंड मुगल एम्परर्स बाबर, अकबर, शाहजहां, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडिविजुअल्स आर देयर ऑन द तिमूर्स। राइट में, लेफ्ट में जितने भी लोग हैं, सारे लोग तिमूर के रूल कर
रहे, जैसे हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, ऑल द रूलर्स हैव बीन शोन इन वन पिक्चर. देखो, इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर, मिनिएचर पेंटिंग इसको इसलिए कहा जा रहा है. लुक एट द इंट्रिकेट कार्विंग. इनकी पगड़ी से लेके, इनके कपड़ों से लेके, कालीन से लेके, फूलदान से लेके, सारी चीज़ें माइन्यूटली देखने की कोशिश करना. देन यू विल अंडरस्टैंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मिनिएचर पेंटिंग. इसको मिनिएचर पेंटिंग कहा गया है. जब आप बारीकी से देखोगे ना, ऑल द मिनी डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स जब आप देखोगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वाई इट इज कॉल्ड एज अ मिनिएचर पेंटिंग. गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ दे ऑलवेज फेल्ट वेरी प्राउड. बहुत ही प्राउड फील करते थे दैट दे वेयर फ्रॉम द तिमुरिड एंसेस्ट्री. तिमुरिड एंसेस्टर्स, क्योंकि इनके कैप्चर्ड दिल्ली 1398 में इन्होंने दिल्ली कैप्चर किया. एंड दे जब अपना कैप्चर किया इन्होंने दिल्ली, तो एक पिक्चर बना के अपनी एक डायनास्टी की ग्रेटनेस दिखाया. ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तिमूर एंड हिमसेल्फ. तिमूर की और अपनी पिक्चर बनवाई. फिगर 2 में देखेंगे, इट इज़ लाइक अ ग्रुप फोटोग्राफ. ग्रुप फोटोग्राफ 400 साल तक जिन लोगों ने रूल किया है उनकी ग्रुप फोटोग्राफ बन सकती है क्या? नो, बट दे हैव ट्राइड. दैट इज देयर. तिमूर के साथ अपनी फोटो बनवाई. ऑफ कोर्स great 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 grandfather, they did not show their picture with Genghis Khan. Genghis Khan के साथ अपने आप को रिलेट नहीं करते थे. गॉट इट? लेकिन दादाजी के तरफ से दे वर रिलेटेड टू तिमूर एंड दे वर वेरी प्राउड दैट दे आर फ्रॉम द तिमुरिड डायनेस्टी. Timurid means their ancestor. गॉट इट? दैट इज देयर. अब इतनी बड़े एम्पायर को कैसे बनाया इन्होंने? हाउ डिड द मुगल्स मेक सच अ बिग एम्पायर? बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर, यू नो, 15 he ruled only for 4 years, 1526 to 1530. Okay, he succeeded to the throne of Fergana. Fergana में, Fergana is in the center, in Kabul, in the central Middle East. And there in 1494 the only 12-year-old. ये इतनी जल्दी एम्परर्स बन जाते थे. यू नो, व्हेन अकबर ऑल्सो बिकेम द एम्परर, यस, एम्परर अकबर जब व्हेन ही टुक ओवर द दिल्ली एम्पायर, उस समय ही वाज जस्ट 13 years old. सो ये इतने जब छोटे छोटे होते थे, उसी समय अपना एम्पायर इस्टेब्लिश कर लेते थे. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू इन्वेजन बाय अनदर मंगोल ग्रुप. ये जब रूलर बने ना, तो बाय दैट टाइम गेंगीज खान वॉज नॉट देयर, लेकिन उनके नाम पे बहुत सारे लोग थे. देयर वेर मेनी ऑफ हिज सन्स, ग्रैंड सन्स एंड देन ग्रैंड सन हु वेर बिग रूलर्स. They were spreading the message of the message of Genghis Khan, and इन्होंने इनको हटा दिया. Okay, Babur was removed from Fergana. The Uzbeks after years, बहुत दिन तक बेचारे इधर उधर भटकते रहे. It is mentioned here, wandering. इन्होंने क्या किया? ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504. 1504 काबुल पे कब्जा किया. एंड 1526 में, जस्ट सी, ही डिड नॉट लूज होप. इनका एम्पायर चला गया, इनकी गद्दी छीन ली गई. ही वॉज नो मोर अ रूलर. कितने जगह इनको भटकना पड़ा, इधर उधर घूम घूम के अपने लिए सपोर्ट खोजना पड़ा, बट ही डिड नॉट लूज होप. सो चिल्ड्रन, व्हेन द टाइम्स आर बैड, कभी भी बुरा समय आए, हिम्मत नहीं हारनी है. यू नेवर नो व्हेन गुड टाइम्स विल कम.
कभी भी अच्छा समय शुरू हो सकता है। एंड ही देन केम टू इंडिया, ये इंडिया आए, बाबर ही केम टू इंडिया। बाय दैट टाइम इंडिया में ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली में सुल्तान वॉज लोडी, इब्राहिम लोडी। देयर वॉज बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत आपने सुना हो गया। एंड ही इज द वन हु कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा पे इन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया। नाउ जस्ट सी फिगर 4 इज हियर, फिगर 3 भी देख लीजिए। दिस इज फिगर 3, सॉरी फिगर 3 देखिए, मुगल कैरी ऑन। ये सब मुगल पेंटिंग है। यस, मुगल्स ने बहुत सारी बुक्स, दे हैव गॉट मेनी बुक्स कमिशन्ड। कमीशन मीन्स उन्होंने सारी बुक्स लिखवाई है। सो द बुक्स दैट दे हैव कमीशन्ड, उसमें देखिए इस तरह की ड्राइंग्स दिखाई है, विच इज़ क्लियरली शोइंग द काइंड ऑफ एम्पायर दैट द मुगल्स, किस तरह से अपना मिलिट्री कैंपेन चलाते थे। हाउ डिड दे कैरी ऑन देयर मिलिट्री कैंपेन, दैट इज वेरी क्लियरली गिवन हियर। ये देखिए आप, गॉट इट। तो दिस इज व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ दीज पीपल। टेबल 1 में क्या है, सम चार्ट्स आर देयर। अभी वी विल बी ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल्स। मुगल्स का मेजर कैंपेनिंग स्प्री जो था उसको वी विल बी सीइंग। एंड देन वी विल नोटिस द लॉन्ग टर्म, कौन से रूलर ने सबसे ज़्यादा दिन रूल किया है। लेट अस सी दिस टेबल। दिस इज टेबल 1। जस्ट सी, दिस इज व्हाट इज द जीनियोलॉजी ऑफ द मुगल एम्परर्स। मतलब किसने कितने साल रूल किया। विच मुगल रूलर हैज़ रूल्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी टाइम्स। गॉट इट? So this chart has to be made. Okay, ये चार्ट आप लोगों को बनाना है। एंड दिस वुड बी मार्क्ड एज योर 5 मार्क्स, योर मल्टीपल असेसमेंट पे मार्क्स वुड बी अलॉटेड फॉर द चार्ट दैट यू वुड बी मेकिंग, जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रूल ऑफ द मुगल एम्परर्स. I'll just complete this paragraph, then I'll be discussing the chart with you. Table 1 में तो we will be seeing that Afghans were an immediate threat to Mughal authority. मुगल को बार बार some people who were continuously troubling the Mughals, attacking the Mughals, trying to capture the Mughal empire, they were the Afghans. Please remember. अभी चैप्टर 7 जब हम आगे पढ़ेंगे, Mughals were also with the Ahoms. Ahoms were the rulers of Assam. असम के जो रूलर्स थे, also देखेंगे एंड चैप्टर 10 में देखेंगे. एंड देन मेवाड़, मारवाड़, मतलब द मुगल्स हैव रूल्ड हियर. लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आराम आराम से उन्होंने रूल किया. दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. आप चिल्ड्रन कोई भी बड़ा काम करते हो ना, दिस इज थिंग टू लर्न फ्रॉम द मुगल्स, कि इतनी एडवर्सिटी के साथ भी इतने लोगों ने उनको अपोज किया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी उन्होंने. दे हैव नेवर लॉस्ट होप. दैट वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी एनकरेजिंग. Humayun's relationship with the Safavid Iran. Safavid were the rulers from Iran. जैसे इंडिया में मुगल्स हैं, वैसे ईरान में one of the greatest rulers were the Safavid dynasty. Got it? अकबर की डायनास्टी से सफाविद डायनास्टी बिल्कुल अलग थी. Then there was the annexation of Golconda and Bijapur. Golconda and Bijapur in the south, they had gone. तो इन द औरंगजेब्स रेन हम बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल डिस्कस इन द चैप्टर ओनली. फिलहाल तो आई वुड लाइक यू टू सी दीज पिक्चर्स. ये देखिए, आपने ऊपर में देखा एक, ये देखिए पिक्चर. अगेन आई एम टेलिंग यू, दीज आर ओरिजिनल पिक्चर्स जो 500 साल पहले बने हैं. येस चिल्ड्रन, 500 साल पहले. लुक हाउ नाइस द पेंटर्स वेयर देयर. क्या कमाल की पेंटिंग की
ऐसा लग रहा है सच में देयर आर पीपल मूविंग, तोप के साथ ये लड़ाई करने जा रहे हैं। इसको देख के ये बहुत क्लियर हो जाता है। गॉट इट? तो यही चीज़ आई जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट। मैं आपको यही बार बार पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही थी कि द रूलर्स हु वेर देयर दे हैड लॉट ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट। अच्छा, देन यू सी देयर क्लोथिंग स्टाइल। देखो इनको शूज़ कैसे पहने हुए इन्होंने, पगड़ियाँ कैसी पहनी हुई हैं, ईच एंड एवरी। जब बारीक में एक एक चीज़ जब डिटेल में देखते हो तो यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट how the people stayed during the Mughal times. Figure 4 लिखा, cannons were an important addition in the 17th century. Cannons, तोप का इस्तेमाल मुगल्स बहुत ज़्यादा, मुगल्स क्या, एनी वॉर दैट वाज देयर, कोई भी वॉर जब होता था तो उसमें तोप का इस्तेमाल किया जाता था। दीज वॉर्स, भाई जीतना है ना, वॉर अगर हो रहा है तो हारने के लिए थोड़ी वॉर हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट एडिशन इन द 16th सेंचुरी वॉरफेयर। बाबर हैड यूज्ड इट वेरी इफेक्टिवली। बाबर ने बहुत ज़्यादा तोपों का इस्तेमाल किया। विच एवर वॉर्स द बाबर हैज़ फॉट इन द फर्स्ट बैटल, सबसे पहले पानीपत। दैट्स वाई द रूलर्स इन इंडिया वेर डिफीटेड इन पानीपत। द काइंड ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जिस तरह के हथियार बाबर ने इस्तेमाल किए उस तरह के हथियार इंडियन रूलर्स के पास नहीं थे। दैट्स वाई द इंडियन रूलर्स फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पाउडर टेक्नोलॉजी, बंदूक है ना, बंदूक की जो गोली होती है, दिस वॉज ब्रॉट टू इंडिया फॉर वॉरफेयर इन द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी में वॉर के लिए दिस टेक्निक वॉज ब्रॉट टू इंडिया एंड फायर आर्म्स वेर यूज्ड। बंदूक इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया। गुजरात में, मालवा में, डेक्कन में, ऑल दीज प्लेसेस द big arms were used. And why? क्योंकि देखो ये चीज समझना पड़ेगा ना, जस्ट have always been winning. ऐसा क्या करते थे, ऐसा क्या उन्होंने किया? तो they had very modern arms and ammunitions. इनके जो हथियार थे बहुत ही मॉडर्न थे. That has made them victorious. Okay, sir, just go through these pictures, look at these pictures, you will be getting a good idea. Table 1 में we are talking about the rulers. रूलर्स के बारे में हमको डिटेल में बात करना है. that I need to discuss it in detail, so we'll be starting it in the next class. थोड़ा सा एक introduction I would like to give you about this table. सबसे पहले बाबर had ruled from 1526 to 1530 and he defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. इसके बाद 1527 में he defeated Rana Sanga ruler and allies means friends, जिनके मतलब 2-3 people, 2-3 rulers join hands together to defeat power. इसके बाद 1528 में ही डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी. इनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी. दैट्स वाई ही वॉज विनिंग ऑल ओवर कंटिन्यूअसली. ठीक है, आगे के रूलर्स के बारे में फिर बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास चिल्ड्रन. टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.